Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, your mathematics teacher, and in second year mathematics today our topic is integration, which is chapter number 5 in second year mathematics. What is integration? First of all, we are to define the integration. Actually, integration is the antiderivative, that is the reverse of derivative. जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेटिव पढ़ा था, डेरिवेटिव कैलकुलेट किए थे, अब ये चैप्टर उसका रिवर्स है कि हम ये चेक करेंगे अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें गिवन है तो रिवर्स में फंक्शन कौन सा होगा, which is said to be a integration. Now, what is the definition of integration? Basically, a function f of x is called an antiderivative of the function on the interval ab if all of the points in the given interval we can say that f prime of x is equal to f of x. कि अगर हमारे पास कोई भी f of x एक फंक्शन है वो उस वक्त एंटी डेरिवेटिव f of x का होगा अगर हम f प्राइम ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो आपको स्मॉल f of x मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं विच इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. For example, first of all, the integration notation of integration is this: integration of f of x into dx. We have to find the value of f of x, but the notation is this. For example, if we take capital smaller f of x is equal to x cube plus 5. Okay. Then capital f of x is equal to x4 divided by 4 plus 5x. If we are to find the derivative of f of x, that is f prime of x, which is equal to d by dx of x4 divided by 4 plus 5x, then which is equal to 4 is a constant, we have to find the derivative of x4 by using power rule. That is 4x cube divided by 4 and the derivative of x is 1, it will become 5, that is we can say that x cube plus 5. This x cube plus 5 is f of x. मतलब ये कि हमने कैपिटल f of x का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, हमें जो आंसर मिला वो स्मॉलर f of x आ गया. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू दिस फंक्शन x4 डिवाइड बाई 4 प्लस 5x. वाई? Because the derivative of this function is equal to this small f of x, x cube plus 5. That is antiderivative. अगर ये x cube plus 5 के साथ कोई एक कांस्टेंट होता, वो कांस्टेंट हम कोई भी ले सकते हैं, हम प्लस c भी कह सकते हैं, प्लस 1 भी कह सकते हैं, प्लस 2 भी कह सकते हैं, लेकिन जो ही हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वाई? द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. इट विल बी आल्सो इक्वल टू x क्यूब प्लस 5. सो वी कैन से दैट x क्यूब प्लस 5 की इंटीग्रेशन x4 डिवाइड बाई 4 प्लस 5x में कोई कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिसका डेरिवेटिव 0 बन गया था. इसलिए we will take any constant c which is a constant of integration. So we can say that the integration of this function is this function.
Why? Because the derivative of this function is equal to x cube plus 5, which is a antiderivative. तो इस तरह जितने भी आप लोगों ने डेरिवेटिव के पढ़े हैं, जितने भी फार्मूले पढ़े हैं, हम उसका रिवर्स लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पढ़ा है द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ x इज सीकेंट स्क्वायर ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। देन वी टेक अ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, इट विल बिकम टेंजेंट। ठीक हो गया कि हम जिस वक्त डेरिवेटिव का हमें फार्मूला याद होगा तो हम इंटीग्रेशन ले सकेंगे, अदरवाइज मुश्किल होगा। इसलिए चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल तौर पर 5 में यूज़ होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह उसको तैयार करना होगा। नाउ कम टू द फर्स्ट रूल टू फाइंड द इंटीग्रेशन। द फर्स्ट रूल इज दिस, इफ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power n with respect to x is equal to x की पावर n plus 1 divided by n plus 1 plus c, but the condition is that n is not equal to minus 1, because if n is equal to minus 1 it will become undefined. Minus 1 plus 1 will become 0. Something divided by 0 is infinity. So this rule is applied only for n is not equal to minus 1. We prove this formula by using antiderivative. With the antiderivative, for example, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n का, पावर रूल n जो भी हो, n इंटू x रेज टू पावर n माइनस 1, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। अब इसी रूल को हम जनरलाइज कर देते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1 का, इससे पहले n था, अब n प्लस 1 है, लेकिन रूल तो चेंज नहीं हुआ, रूल तो वही है। इस तरह इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1। जिस तरह n माइनस 1 लिखा, n प्लस 1 माइनस 1 लिख दिया, 1 और 1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये बन गया n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n। बट n प्लस 1 इज अ कांस्टेंट, ये कोई फंक्शन नहीं है, लिहाजा ये जो n प्लस 1 है मैं इस तरफ डिवाइड कर सकता हूँ जिसका डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट है। फंक्शन के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट सेम इट इज रहता है, ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1। अगर मैं डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ले लूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 आ जाएगा, n प्लस 1 दे आर कैंसल, इट विल बिकम x रेज टू पावर n। इफ द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस 1 divided by n plus 1 is equal to x raised to power n, then we can say that the antiderivative of x raised to power n will become x की power n plus 1 divided by n plus 1, which is the antiderivative, reverse of derivative. So we can say that integration of x raised to power n with respect to x, which is equal to x की power n plus 1 divided by n plus 1 प्लस c इज एनी कांस्टेंट, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। प्लस c क्यों लिखा हमने, इस वजह से लिखा कि अगर यहाँ पर कांस्टेंट भी होता तब भी उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, 0 बन जाता, इसलिए हम प्लस कांस्टेंट लगाएंगे, विच इज द सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का पावर रूल बन जाता है और इसी इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम देंगे क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होगी। अभी हम सिर्फ एंटी डेरिवेटिव इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही होगी।
ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोगों ने बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, रिलेटेड एग्जांपल भी मैं करूँगा, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल इसी फार्मूले से सॉल्व किए जाएंगे। आपने इसी को अप्लाई करके सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल वी कम टू द एग्जांपल फ्रॉम योर बुक 5.1.2 आपकी बुक की एग्जांपल है। इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है कि आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/3 एंड द सेकेंड 1/x क्यूब की। इन दोनों की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू evaluate the integration of the a part. We will take a part is that integration of x की पावर 1/3 into dx। ये ही गिवन है, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही टू फाइंड है, कुछ चेंजिंग नहीं है, इसलिए मैंने ए की हेडिंग दी है। फार्मूला इसके लिए, क्योंकि ये x की पावर एक नंबर आ गया 1/3, फार्मूला यही यूज़ करेंगे, दैट इज वी टू यूज़ आ फार्मूला x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन आ जाती है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, बट n इज नॉट इक्वल टू -1। वी विल यूज दिस फार्मूला टू फाइंड इंटीग्रेशन। नाउ we'll take this function x की पावर 1/3, here n is equal to 1/3 which is not equal to 1, that is -1, that is 1/3. So we will take integration of x raised to power 1/3 with respect to x by using this formula. It will become x raised to power 1/3 plus 1 divided by 1/3 plus 1 plus c is any constant. Here what is n? n is equal to 1/3, n 1/3 ले लिया। Now simplify it, that is x की पावर एलसीएम लेकर ऐड करेंगे 1 plus 3 डिवाइड बाई 3, डिनोमिनेटर में भी 1 plus 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c इज द कांस्टेंट। नेक्स्ट हम ले लेंगे x की पावर 4 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 4/3 प्लस c, देन 3/4 ऊपर चला जाएगा, 3/4 बना देगा, x रेज टू पावर 4/3 प्लस c, विच इज द a पार्ट टू फाइंड द इंटीग्रेशन। Similarly, which is the a part, if we will take a b part, integration of 1 divided by x cube with respect to x, we have to find the value of this integration, which is the result of the first part, heading दे देंगे result की। Now for the b part, we will take integration of 1 by x cube with respect to x, which is equal to, ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर -3 dx। in this case n is equal to -3, again using this formula, दोबारा फिर इसी फार्मूले को यूज करेंगे। इस तरह ये बन जाएगा x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट, दैट इज x की पावर -2 divided by -2 plus c, it will become -1 divided by 2x square plus c is the integration of the function 1 divided by x cube। लेकिन डिवाइड की फॉर्म में था, ऊपर लेकर गए तो पावर -3 हो गई, कुछ -1 तो नहीं बनी कि हम नहीं रूल अप्लाई कर सकते। उसी तरह आप लोगों ने रूल अप्लाई किया, -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया, दैट इज -1/2x स्क्वायर।
So which is the first example to find the integration. Now we will take a second example. सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. इन दिस एग्जाम्पल, इस एक फंक्शन के अंदर 1 2 3 तीन फंक्शन है. इस एग्जाम्पल के 4 पार्ट्स हैं. मैं उसका एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, बाकी 3 पार्ट आप लोग करेंगे. नाउ वी विल एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 5x square plus 4x plus 2 with respect to x, that is dx. अब यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन एक पॉलिनॉमियल की फॉर्म में हैं. इनमें से भी बेशक ये प्लस की फॉर्म में हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन जो रूल अप्लाई करेंगे वो एक ही होगा जो हमने अभी एग्जाम्पल में सॉल्व किया था. Now the same formula, that is integration of x raised to power n with respect to x, that is x की power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, हर एक पे यही रूल अप्लाई किया जाएगा. Now integration of 5x square plus 4x plus 2 into dx, which is equal to अलग अलग इंटीग्रेशन 5x square into dx plus 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर शिफ्ट कर दिया, चले 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, 5 बाहर आ जाएगा, x square dx, 4 बाहर आ जाएगा, x dx, 2 बाहर आ जाएगा, 1 dx. तमाम पे पावर रूल अप्लाई करेंगे. दैट इज 5 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, जिस तरह x का डेरिवेटिव 1 है तो रिवर्स में 1 की इंटीग्रेशन x प्लस सी, वैसे भी इंटीग्रेशन और डी डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. यह आ जाएगा 5x क्यूब डिवाइड बाई 3, 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2x प्लस सी, ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 बाई 3 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज द रिजल्ट. जहाँ पर हर फंक्शन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करके सब पर यही रूल अप्लाई किया, देन इंटीग्रेशंस. नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? द होमवर्क इज दैट जो बाकी पार्ट्स बच गए हैं इसी एग्जाम्पल के ए बी और डी पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं. साथ साथ आपने इनको क्या करना है, रिवाइज भी करना है, और यही आपका होमवर्क होगा. थैंक यू वेरी मच.